ان کی ماضی کی زندگی پوچھی کہ کوئی اچھا ایک دھبا ہو نہیں تو کہنے لگے فلاسفر کوئی نہیں ہے. بھائی نہیں، وہ ٹھیک، وہ ماضی کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، پر کسی کی بھی ہاں زندگی ماضی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں 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 دیکھیں، میرے اگر یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تو اس کے لیے معذرت. میں تو ماضی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے بھی اپنی ماضی کی زندگی پیش ماضی کی. کی ماضی کی ہی کسی بھی انسان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو سکتی ہے. سر میں کہتا ہوں ماضی زندگی کا کی ایک حصہ بھی زندگی نہیں ہو سکتا، زندگی کا ایک حصہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی حساب جیسا بھی نہیں نہیں ہو ہو سکتا. سکتا، ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ. بالکل 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 نبی اچھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سفر بھائی آپ لاسٹ سوال رکھیں، سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی سوال پوچھنے ہیں. لاسٹ سوال ہے، اس کے بعد آپ نہیں پلیز نہیں میوٹ میرے کریے گا. سوال پھر میرے آپ سوال آزاد بس بھائی بھی ہیں، ججا بھائی ہیں، میرے طاہر بھائی سوال بھی جو ہے نا آئے ہیں. وہ میرے سوال علی بھائی نہیں کہتا میرے بچوں جیسا ہے کوئی نہیں. میں تو آپ میری لوگوں ان سے کا گفتگو کرائیں ذرا میری نا. میں تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایم ایس آر بھائی سے یہاں بات کرنے کا موقع دیا، اور جتنے معیارات جماعت احمدی رکھتی ہے ان تمام معیارات میں نے ان کو پرکھا. اب میں نہیں اس بات پہ حیران ہوں کہ جماعت احمدیہ والے جو ایک بات آخری شرط تھی سنیں، مرزا صاحب کی ایک اس پہ ہی بات پورے سنیں، اتر گئے کہ آپ آخری بھی دعا ہے کر کہ میں مانتے مرزا ہیں نا صاحب کا موڈ نیا کر مرزا رہا ہوگا. ہوں. صاحب کو، اب وہ ان کو نبی آپ نے ماننے میں کیا عذر ہے؟ شکر کر میں تو میڈیٹر نہیں ہوں. آپ مان گئے نا ان کو نبی. سر میں تو آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو مانتے ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ آپ وسلم کو کے بعد اس امت میں کوئی ایک نبی ہوگا. چھوٹی سی تو بات، قرآن صرف کریم ایک کی اس چھوٹی سی آیت کو بات. پھر آپ جھٹلا دیتے ہیں. ساڈی ہیلپ کرنا آیا نے ساڈی جھولی نہیں جا کے نہیں، رکاوٹ لوانی ساڈی. قرآن نہیں رانا کریم کی بھائی، ہی صرف آیت ایک ہے، چھوٹی سی اس کو بات. جھٹلا سر دیتے ہیں جی پھر آپ. دیکھیں تمام معیار پہ پورے اتر گئے ہیں. مجھے صرف یہ بتا نہیں، دیں کہ ایک اب کوئی ایک ایسا عذر ایک ہے جو ان کو سوال ہے، نبی ماننے میں ایک نہیں، سوال رکاوٹ ہے ہے، آپ ایک یہ لوگوں کے سوال. لیے؟ آپ کے لیے آیت نہیں ہے، آپ کے لیے بھی آیت ہے، آپ نے بھی ماننا ہے ان کو، ٹھیک مانے ہے آپ بات بھی سنیں ججا جی. ججا بھائی ایک سیکنڈ، مان ججا کے بھائی جائیں ایک یہاں سے. منٹ، ایک سیکنڈ، صرف ایک سوال. کیا اب کوئی نبی بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کر سکتا؟ ایم ایس آر بھائی آپ بتائیں کہ نہیں آپ کوئی بھی کام تو کوئی کام کر ان سکتا کی ہے، شریعت سے ہٹ لیکن کے کر نہیں نہیں سکتے؟ مطلب عام کوئی نہیں کر ججے تو سکتا. کوئی ایم ایس آر پیغام ہے، ایسا. ججے شریعت تو ایم ایس آن آر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. ججا بھائی باری باری، ججا بھائی باری باری. جٹ بھائی کا سوال ہے، وہ انہیں جواب لے لیں ایم گے. ایس آر بھائی، آپ کوئی بھی ایسا حکم جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو. نہیں میں نے بتا دیا ہے، شریعت اب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اچھا ان کی چلے گی. ان کی شریعت میں یہ کہیں بھی حدیث قرآن میں ملتا ہے کہ عورت نبی بن سکتی ہے؟ مجھے اللہ نے بتایا ہے نا آج کے دور میں.
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سے 10 سے بھی زیادہ طرح سے باتیں بتائی ہیں جو آج کے دور میں انسان کو سمجھنی چاہیے. نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے بتایا ہے نا. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا آنسر ہے. علی بھائی آپ کی باری ہے, میں 1 منٹ لگا رہا ہوں آپ کا. آپ منٹ لگائیں, صحیح ہے. چیمہ صاحب میرے آپ سے سوال تو نہیں ہوتے, پر یہ مجھے نا تھوڑی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ سب لوگ آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, آپ تو بہلا پسلا رہے ہیں. یہ چیز آپ نے نہیں بھولنی کہ احمدی آپ پہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے, آپ سے تھوڑا اونچی بھی بول سکتا ہے, آپ سے فار ایگزامپل بد زبانی بھی کر سکتا ہے. یہ پاسبل ہے دنیا میں, پر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ کسی نے بھی آپ کا سر تن سے جدا کرنے نہیں آنا. جو لوگ آپ کو ٹریپ کی طرف اپنی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کی ہسٹری چیک کر لیے گا, اور تبھی معذرت کے ساتھ جتنا بھی وہ نہیں. چیمہ صاحب سن لینا, میرا منٹ ہے. چیمہ صاحب جتنا بھی وہ بھلائیں پسلائیں تسلیاں دیں تفلیاں دیں جو مردی دیں وہ آپ کو, میری آپ سے تو یہی نصیحت و سجیشن ہے چھوٹی سی کہ آپ نے کسی کی بھی باتوں پہ نہیں آنا, آپ نے اپنا سر تن سے جدا نہیں کروانا. جی چیمہ صاحب. مجھے اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا ہے, احمدیوں کے اندر سے بعض ایسے لوگوں کے متعلق اشارہ دیا ہے جو بدماش ٹائم ہے, وہ مجھے اب مارنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, احمدیوں کے اندر سے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, مجھے اللہ نے وہم ہے, یہ وہم ہے. اپنی زندگی اس کو وہم کہہ سکتے ہیں, وہم کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی. اللہ سے پوچھ کے کرتا چیمہ ہوں. صاحب کوئی مسئلہ نہیں ججا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, بول لینے دیں انہیں. یہ ایسا نہیں ہونا تو دنیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کی بات درست نہیں تھی. بالکل ایسا نہیں ہونا. پہلے بھی کبھی نہیں. یار ججا بھائی نے مجھے بتایا تھا, مطلب پہلے بھی اللہ نے مجھے بتایا تھا ایک کتا ہے میرے گلے پڑا یار ہے. محمد بھائی جرمن میں رہتے ہیں, یہ جرمن میں ایسا معاملہ کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے بات کرنی ہے سن لے بات. اب اللہ نے پہلے بھی بتایا تھا ایک کتا ہے مجھے گلے پڑے گا, وہ احمدی ہے میرے گلے پڑا ہے, وہ جرمنی میں پڑا ہے. تو وہ بات پوری ہو چکی ہے, اور میں نے اس کو یہی کہا کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں آپ کو کس لیے لڑ رہے ہو. مگر اس کو کسی نے جو بتایا گیا تھا وہ بالکل بات پوری ہوئی تھی, وہ پیچھے سے اس کو کسی نے ہلاشری دی ہوئی تھی, ورنہ اس کے میں خدمت کرتا رہا, اس کے کام آتا رہا ہوں, اس سے میری لڑائی تھی ہی نہیں. اس لیے منٹ ہو گیا. جی محمد احمد بھیا, یہ طاہر بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہے چیمہ صاحب سے؟ جی میں اپنا وقت حضرت علامہ ججا صاحب کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت علامہ ججا صاحب آپ آئے, آپ کا آزاد بھائی آئے ہیں, آزاد بھائی آئے ہیں پھر سے. آزاد بھائی تو پہلے ٹائم دیں میری پہلے. آزاد بھائی آپ کا ٹائم چل رہا ہے. ان کے احترام میں پیارے حضور کر کے بات کر لینا, پیارے حضور سوال ہے تاکہ احترام بھی ہو جائے گا نا. میوٹ کا تیری وجہ میں چلا گیا. بھائی ہم سن رہے ہیں کہ آپ چیمہ صاحب پیارے حضور میوٹ کر لا. ٹائم بہت گزر رہا ہے, جلدی جلدی. چیمہ صاحب, ہاں چیمہ صاحب مجھے یہ ایک سوال کا جواب دیں. آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ پر ایمان لے کے آیا ابھی تک کہ نہیں آیا, یا ڈاکٹر کو لے کے آئے ہیں, یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. آپ نے چھوڑ دیں نا, آپ اپنے فکر نہیں, یہ پرسنل نہیں ہے. آپ کے گھر والوں کو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ پتا ہے. میں یہ آپ نے صرف سوال کرنا ہے. بھائی. راجپوت صاحب, اس طرح سے اگر فیصلہ گھر سے لینا ہوتا نا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو نہیں وہ کیا کہتی تھی, وہ جا کے تقریر کرتی. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, حضرت نوح میں نہیں جانتا کون ہے. تو میری زندگی سے موجود ہے. اگر پوچھنا ہے, میں نے کہا ہے اللہ سے پوچھو, میں تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ سے کی طرف بھیج رہا ہوں. میرا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ پر ایمان نہیں ہے, اس وجہ سے یہ باتیں کرے. جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ سے پوچھو کہ اللہ آپ کو بتا دے گا. مجھے اللہ کا بتانا ہے. تو بھائی ایمان یافتہ لوگ جو ہے نا اللہ کی طرف جائیں گے. آپ کو محبوس کیا ہے, آپ نے مجھے اللہ ماننا نہیں, آپ نے مجھے حیثیت بند کرنا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے. جی باری کریں گے. آزاد راجپوت بھائی ان کا آنسر آ گیا ہے, وہ انہوں نے حضرت نوح کے گھرانے کی مثال دی, اور میرا خیال ہے کہ وہ جواب آ چکا ہے. ہم کب کسی اور کو موقع دیتے ہیں. کلاؤڈ کی دوبارہ باری آتی ہے. کلاؤڈ رہتا پھیلائے, آپ کا 1 منٹ. میرا ایک سوال ملک بھائی کلاؤڈ کے بعد آپ کی باری ہے. طاہر بھائی نے اپنا ٹائم ججا بھائی تو دیا, ججا بھائی تو 1 منٹ دیں, پھر کلاؤڈ بھائی تو دیں, پھر اس طرح نا. حضرت علامہ ججا صاحب کے چلو جی ججا بھائی 1 منٹ. آپ حضرت علامہ ججا بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. اچھا میرا ٹائم سٹارٹ ہے جی.
कर लें अब। बात ये है कि ये मैं पूछना चाहता हूँ चीमा साहब से कि वो कौन बंदा है जो जमात में इनके गले पड़ा है और इनकी क्या रिश्तेदारी है उनसे और क्या मसला हुआ, किस मसले की वजह से वो जो है इनके कोई गले कोई पड़ा। ये रिश्तेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो किसी लोगों के कहने की वजह से मेरे गले पड़ा था। अच्छा, बगैर रिश्तेदारी के तल्लक भी कोई नहीं था आपका उसके साथ? कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक मुझे ना दिखा दिया रिश्तेदार का मतलब, वो उसको यानी कोई तल्लक नहीं था, उस बंदे का कोई तल्लक नहीं था। यार जजा भाई इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं हुई, आपने सिर्फ सवाल करना है, प्राइवेट में उसके बाद बस। चलें ठीक है, मैं खामोश होता करें आप बात करवाएं और करें। मेरा सवाल है चले जनाब, जी, क्या सवाल है? क्लाउड साहब आपका रायता फैलाएं। हाँ जी प्लीज प्लीज। जी जी, आपका टाइम से स्टार्ट हो रहा है यार। मेरे प्यारे हजूर, एक सवाल है। प्यारे हजूर, आप इजाजत देते हैं प्यारे हजूर सवाल करने का? जी जी। प्यारे अरे हजूर, टाइम सवाल चल ये रहा है है, कर ले जल्दी भाई, सुबह जॉब अल्लाह पे भी ताला जाना जो है। है अपने नबी को गैब पर मुत्तले करता है ना, तो प्यारे हजूर ऐसी कौन सी गैब की खबर है जो कुरान के अलावा आपके ऊपर आई, जैसे फलां शख्स से तंग करता है, फलां शख्स से उसने आपको तंग नहीं किया, कोई भी ऐसी गैब की खबर जो बिल्कुल पूरी हुई है हूबहू, जिस पे आपका ईमान अल्लाह पे और यकीन पुख्ता हो गया हो प्यारे हजूर, उस पर ज़रा हमारी इस्लाह फरमा दें प्यारे हजूर। मैं दिल से आपके लिए दुआगो रहूँगा प्यारे हजूर। बहुत शुक्रिया प्यारे हजूर। जो अल्लाह ताला को इंसान ऐसे तो पहचान नहीं सकता ना, इसी तरह से अल्लाह ताला ने तरीका रखा है कि अल्लाह ताला गैब की खबरें देता है अपनी ज़िंदगी के मतलब, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी दुनिया के मतलब, फिर अपनी किताब के अंदर से अल्लाह ताला नज़ारे बहुत प्यारे ऐसे ऐसे दिखाता है जिससे कि इंसान को एक सुकून और राहत महसूस होती है, तो उससे यकीन पैदा होता है वाकई कोई ज़ात है जो ये करती है। जब आपने मुंह से बात निकाली और कैसे कैसे मुंह से बात की और पूरी हो गई, तो वो उससे यकीन पैदा, ये तो मैंने ऐसे बात की थी, ये पूरी हो गई, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। फिर मेरे साथ कई बार होता है, ये मुंह से बात निकाली पूरी हो जाती है, तो उससे यकीन पैदा हुआ कि वाकई अल्लाह है, फिर इंसान और ज़्यादा उसकी तरफ झुकता है। अभी तक बहुत सारे लोगों को ईमान ही नहीं है, वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में बताया है, वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले, हालांकि वो इस्लाह करने वाले नहीं होते। क्यों? कि वो अल्लाह के नज़दीक अपने मतलब के साथ जुड़े होते हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सियां और अपना इल्म, अपना जो ताकत, वो उसकी वाकया सुना दे, करना सब कुछ। वाकया सुना दे प्यारे हजूर, वाकया सुना दे कोई वाकया। इतना टाइम नहीं है क्लाउड भाई इंटरप्ट नहीं करेंगे, आंसर आ गया, इस आंसर में उनका आपके बारे में भी जिक्र आ गया, तो अब मतलब आपके साथ मेरा एक सवाल है। मेरे साथ जो क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर मैं दावा करूं तो मुझे इतना टाइम मिलेगा जितना आप MSR को दे रहे हैं? डबल मिलेगा आपको, ज्यादा सही है आपको डबल मिलेगा। अल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने जहालत को देख के नहीं इनाम देने, ना ही किसी के इल्म को देख के देना, ना ताकत को देख के, ना खानदान देख के, जो करेगा उसको देना। सही बात है, मेरा कंधा काट दो, मेरा कंधा सही काट कह रहे दो। हैं आप सही कह रहे हैं आप रियाज भाई, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣ ਜੋ ਨਬੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ? क्लाउड सर्वर ले आओ जरा, इस जगह तीन जगह का क्लाउड सर्वर ले आओ जरा, मैं ना गल वो फ्रॉडबाजियां कर रहा है, वो बात ही नहीं करेगा, उसके हाथ में खिलौना आया हुआ है, वही से खेलना चाहिए। अगर यही कहता था कि मैं सरदार हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे सब कुछ है मेरे पास। चीमा साहब, मलक साहब का टाइम है अब। जी मलक साहब 1 मिनट। मुझे अभी अल्लाह ताला ने 10 नाम बता दिए हैं। अच्छा, वो क्या एक पर वो रियाज भाई जो है ना, वो इनाम को कोई नहीं, वो कहते हैं कि ये वाले इनाम तो हिंदुओं के पास है, इनके पास सबके पास है। उनकी नज़र में इनाम सिर्फ वही है कि अल्लाह ताला आपको सच्चा ख्वाब बताए, आपके साथ बात करे, वो इनाम है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सबके पास है। वो रियाज भाई के अफकार वो है। तो आप अगर हनुमान को मानते हैं फिर भी सच्चे ख्वाब आते हैं, उसमें क्या? बिल्कुल ठीक है। एक बात है जी अल्लाह ताला ने एक इल्हाम जो होते हैं, ख्वाब जो होते हैं, वो रहमानी और शैतानी दोनों ही होते हैं या फिर एक किस्म के होते हैं? जज्जा साहब तुसी अहमदी हो? हाँ जी आपके वैसे पूछा है रियाज साहब, आपके बारे में नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से नहीं, मैंने आपकी तरफ ना कोई मंसूब की बात मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम वैसे किया पूछा। कि शैतान सच्चा है। जज्जा भाई ये इसका जवाब तो बड़ा आसान है। अगर इल्हाम आपके फ़िरके के दिफा में आए, फ़ायदे में आए, तो वो रहमानी हो सकता है, फ़िरके के खिलाफ आए तो वो शैतानी हो सकता है।
लेकिन होता तो है ना, हाँ जी हाँ जी, शैतानी भी होता है कि नहीं। एक चीज और मैं बता बता दूं, दो भैया। ये फरमाया हजरत मिर्जा साहब ने, एक मिनट, हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया हजरत अब्दुल कादिर जिलान, हजरत अब्दुल कादिर जिलान जो हैं उन जैसा तकवा कोई कहाँ से लाए। उन्होंने उनकी तारीफ की है और बताया है कि उनको भी ख्वाब एक आया कि भाई अल्लाह ताला से ये तुम्हें ये हुक्म है कि बस नमाज़ें पढ़नी छोड़ दे, बस तू पहुँच गया है। तो उन्होंने इस इल्हाम को जो है वो शैतानी समझा, रहमानी नहीं समझा। इसलिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जजा भैया मलद भाई इतना टाइम ये है, ऐसा बात मलद होती भाई है जो इंसान के अपने जी, ख्यालात होते नहीं हैं। चीमा साहब मलद साहब सवाल ले लें, वो बड़ी देर से बैठे हैं, फिर वो बोर हो जाए। एक चीज तो पहले भी बताना जी, जी, चाहता हूँ, ठीक। अल्लाह की तरफ से बताई गई है। अल्लाह ताला ने एक मुझे मिनट, इस बात की तरफ एक मिनट यार, एक मिनट। तो एक नबी मिनट ਦਾ यार, ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, सुन लो, ਨਬੀ ਦਾ सुन ਸੈਸ਼ਨ लो, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। सुन लो, ਆ सुन ਕਲਾउਡ लो। ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਚੈੱਕ करना गल मैं। सुन लो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने इस तरफ वजह दिलाई। अल्लाह ताला ने जिस तरह से पहले नबियों को विर्द करने के लिए अल्फाज दिए थे, तुम्हें भी दिए हैं। तो मेरी आवाज आ रही है? नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ नहीं आ रही आवाज अजय। बीचो मेरे को भी मलद साहब आ रही है, वो चीमा साहब अपना लास्ट छोटी सी बात बोल प्यारे रहे हैं। हजूर बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ सकती आपकी, उनको बोलने नहीं बाद में। अब अल्लाह ताला ने आज के दौर में सबको समझाने के लिए ये मिसाल भी बताई है कि जैसे पहले नबियों को अल्लाह ताला ने विर्द करने के लिए अरबी में अल्फाज दिए थे, इसी तरह से मेरे पास भी हैं। तो अगर किसी के पास ईमान है तो फिर वो समझ जाए कि अल्लाह ताला ने जब इसके पास भी हैं तो ये मकाम इसकी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। बहुत खूबसूरत, वो लफाज यहाँ पर बता दें, ये बंदे विर्द करते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं भी करूँगा। वो अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं जिसके हालात कमज़ोर हैं, परेशानियां हैं, वो ये विर्द किया करे। मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, अलहम्दो वस्सलाम इन्ना का हमीद मजीद, इन दोनों को मिला के पढ़ना। माशाल्लाह, इसका मतलब भी बताए ना फिर चीमा साहब। मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, ये तो कहते आपको भी सबको आता है और गूगल भी कर सकते हैं नहीं मुझे नहीं आता ना, मतलब समझा दे कोई मसला। आपको बताया हुआ है पहले ना। अच्छी बात बताई है उन्होंने, ठीक है। अच्छा मलद साहब अब आपका टाइम है जी। मलद साहब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो किसी भाई ने वालेकुम अस्सलाम। सवाल किया था क्लाउड साहब से कि आप बहुत तारीफ कर रहे हैं तो आप भी इनको माने। क्लाउड साहब जो हैं वो हाफिज़ कुरान है, अल्लाह के फजल से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया हुआ है। उनको पता है कि अगर मैंने मान लिया तो वो सूरह मुनाफिकून किधर जाएगी। जब तक दुनिया कायम है, दुनिया में अल्लाह मियां ने मुनाफिकीन भी रखने हैं, इसलिए वो नहीं उनको मानेंगे। हाँ जी यार तो सूरत निसा की आयत नंबर 35 कहाँ जाएगी ये भी है। जजा साहब क्लाउड म्यूट करो। आपकी क्लाउड आप हाफिज हो, हाफिज कुरान हो? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सो गया लगता है। ਓਕੇ ਚੀਮਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਟਕਰੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। थक गए ने ਯਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। या बिल्कुल। देखो आप लोग जो यार रियाज भाई, मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ यार, पता ही रह रहा है। ਖੁਸਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ, ਖੁਸਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰग किसी कर। नबी ने यह किया है, मैं फलाने साल क्या गल की थी, वही जाके सुन लो। दुनिया में भाई क्या मॉडर्न मॉडर्न नबी आए ने टाइम हो गया, अब दूसरों को भी बारी दे। मलद साहब दूसरों को भी बारी। ਮਾਡਰਨ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ। कौन आ गया? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਟਿਕਟਾਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਣਾ लेंगे। क्या बना लो अपना? हाँ 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 हाँ। यार वैसे रियाज भाई आपका वाकई में बड़ा रश पड़ जाना यार, आपने अगर फ्रॉड अरे ये ना मोहम्मद अहमद भाई, वो हमारे हैं ना इफ्तिखार चीमा साहब, उनको जानते हैं आप? हाँ जी मैं जानता हूँ, ये सारी फैमिली माशाल्लाह बहुत रूहानी है हाँ जी, सब। बिल्कुल। रोया कशूफ कौन जानता चीमा साहब ਨੂੰ? इफ्तिखार चीमा साहब ਨੂੰ कौन जानता है? कौन लेकिन नहीं एक जानता? पहले तो ये पूछे कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानते हैं मोहम्मद अहमद साहब? मैं जानता हूँ ना। इजाजत दें। मेरा उनसे ना 98,000 रुपया लेके दे। नहीं उन्होंने ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। यार चले गए
ਕਰਾਊਡ ਸਰਫਰ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਜਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हाँ जी, वो नहीं बताएगा। असल में आजाद भाई ये होता है ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। नहीं आजाद भाई, आप ना बीच में हमें भी रबर करते हैं सही है, आप भी उन हस्तियों पे जाते हैं जिन पे हमारा भी ईमान होता है ना, इसलिए वो चीज मैं आपसे यार तो ईमान मजबूत होगा ना, आपका ईमान मजबूत होगा ना। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़े, मोहम्मद अहमद वो चले गए हैं। जो इसने बात की है ना कि मुद्दई मेरे सामने नज़दीक हर मुद्दई नबूवत जो कज़ाब और दजाल होगा, तो इसका जवाब दे किधर गया ये कलाउड साहब? मैंने इतना इनके हाथ में दी है, ये सारे अपने ही उलमा अपने चक्कर में पड़ रहे हैं, उसको वहीं पे पकड़ें कि भाई तुम ये फ्रॉडबाजियां क्यों कर रहे हो, तुम तो हर एक को झूठा कहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे नहीं मोहम्मद अहमद भाई बोलने नहीं देना चाहिए। देखिए आज वो इतनी बातें बोल के गया है, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, वो तो हज़रत मसीह अलैहि सलाम तो सच्चा साबित करके गया। हम भी जज्बाती हो जाते हैं कि पता नहीं उसने हज़रत मसीह अलैहि सलाम के 2 इल्हाम पढ़ भी दिए हैं, वो अपने टाइम में वो इल्हाम बड़े अच्छे थे, बड़े सच्चे थे, उन इल्हामों पे जज्बाती क्यों होना है? हज़रत मसीह अलैहि सलाम के इल्हाम थे, पर वो जो बातें बोल रहा था मुझे तो साफ जी मुझे तो साफ नजर आ रहा था कि वो नहीं आपस में मक्खियां मारना कोई फायदा नहीं है, आपस में कोई बात वो हजरत मसीह अलैहि सलाम की दलीलें दे रहा था, मैं तो वो सुन के मजा ले रहा था। कुरान करीम की आयत के ऊपर खड़े हो जाएं, कुरान करीम की आयत में दोनों इत्तेफाक कर जाएं, तो फिर आने वाले हर नबी को मानना होगा। वो मिर्जा साहब कुरान मजीद की आयत पर नहीं खड़े होते यार, उसको पढ़ के अमल करते हैं, उसके ऊपर क्यों खड़े होना है आपने? करते हैं इस दुनिया में मोहम्मद अहमद साहब जिवें दा मर्जी घेड़ लेदा, हुसैनी साहब दे शागिर्द जो है। इस दुनिया में हर कोई शातम है, बस नजरियात का इख्तलाफ होना चाहिए, फिक्र का इख्तलाफ होना चाहिए। दुनिया में हर कोई शातम है, नहीं मोहम्मद अहमद भाई किसी न किसी का। जज्जा भाई भी जिस ब्राड पे जाते हैं ना, वो समझते हैं कि हुसैनी साहब की ब्राड है, जैसे मर्जी बोलो जो मर्जी बोलो बस शुरू हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई पॉइंट बनता नहीं बनता, भाड़ में जाए बस। जज्जा साहब इथे कली नाम दी पुप्पी है, ओदा राज है, इथे ध्यान ना बोलना। आजाद भाई देखिए मैंने आपकी ब्रांड पे नहीं आना चाहना, देखिए आप मुझे इतने ताने इधर देखी जाते हैं। मोहम्मद साहब मेरे को कोई गलती हुई है, आप जिन्नी कुछ को ये चुको मैं गलती की थी तो मेरी वाजिया कर दो, मैं ताकि सलाह कर। नहीं कोई नहीं हुई, सब ठीक है। बस इतने एक छोटी सी है कि वो ब्रेकें थोड़ी सी टाइट करवा लें, बदल लें, जब कोई कह रुक जाए तो आप रुक जाया करो यार, आप नॉन स्टॉप है उस वजह से एक बात करना रुक जाए तो ये तो मेरा ख्याल है कोई बंदा इस बात से बचा ही नहीं है कि जिसकी फटाफट ब्रेकें लगाने के आने के बाद अपनी बात छोड़ दे। मेरी मुसलमान मुसीबत है ना, अच्छा रहील आ गया होते रहील वो मुसलमान होया ते अजे भी मुसलमान नहीं मनन दे, इसदा की चक्कर है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी आपका? रही मुसलमान जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ले हाल। मुझे मुसलमान नहीं मानते, और अहमदी जमात वाले जो इलाही जमात है वो मुझे अहमदी नहीं मानते। असी जाए तो जाए किथे? चलो हुण मैं दसदा ना तेन, हुण तू मुसलमान नाल चला गया ना, दलीला दे लिया ने तू, सारी दलीला दे लिया ने, सारा कुछ कर लिया तू, सारी दलीला दे के थक गया और कहते ना कैमरा आंदा पेश करने दी ब्राड पे। मोहम्मद अहमद साहब राणा साहब थोड़ी ट्रक विच आ जाइए, बहुत कसमें इंटेलिजेंट है। कौन है ये जो रहील है? राहिल बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ये बड़ा सबकी बड़ी बड़ी कार्रवाई है। हाँ शुरू से इसका अंदाजा हुआ था, पूरी वैरायटी है, पूरी फिल्म है। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर भाई, क्या हाल है? ठीक, मैं पहले उमर साहब ट्रक पे आ जाऊं? राणा साहब ट्रक पे आ जाऊं? किसी की भी बात मुकम्मल नहीं हो पाती, प्लीज प्रोफेसर भाई को बात मुकम्मल करने दो, फिर कोई और बोले और इजाजत लेके बोले, ताकि सब एक दूसरे की बात सुन सके। प्रोफेसर भाई आपकी बात।
मोहम्मद अहमद भाई, मेरी गुजारिश यही है बस कि दो ही सूरतें हैं, या बड़ी ब्राड पे चले जाएं तो आपको किसी भी जगह पे चले जाएं तो बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप मशहूर हो जाएंगे ना किसी न किसी तरीके से। तो या गालियाँ निकालें तो आप मशहूर हो जाएं, ताकि जो भी आता जाए फौरी ना उसको माइक दे दिया जाए। मैं तो अपनी जमात वालों को सबको मौका देता हूँ सर, मैं तो अपनी यार तरफ से सबको मौका देता हूँ अपनी जमात वालों को। राइल मैं बताऊंगा खुद आपको जब आपने बोलना होगा। प्लीज यार, प्रोफेसर भाई बात कर रहे हैं, आपने फिर टोक के बीच में बोलना शुरू कर दिया। यार प्लीज ना किया करो यार ये। जी प्रोफेसर नुस्खा तो ले लो, नुस्खा पहले लेते हैं, पर पहले प्रोफेसर भाई की बात तो मुकम्मल हो जाती जो कर रहे जब हैं वो। नया बंदा आता है तो उसकी बात होने दिया करें भाई। प्रोफेसर भाई अब आप कर रहे हैं बात मुकम्मल। मुझे पता है सब बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, आलम भी हैं, मगर बारी बारी बात कर लो यार प्रोफेसर भाई। जी मोहम्मद अहमद भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हमसे सब ज़्यादा जो है माशाल्लाह से इंटेलिजेंट्स भी हैं, ज़्यादा समझदार भी हैं, आलम भी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ब्राडों के जो है ना वो उलमा बैठे हुए हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट ही है, अगर मान ली जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई आता है, क्योंकि मैं इससे पहले अस्सलाम वालेकुम किया है, मुझे वो किसी ने ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में घास नहीं डाला। कोई भी है, चलो को नहीं मसला आए तो उसको ना मौका थोड़ा सा मिलना चाहिए। यदि मैं आज जाना सी गुजारिश है, बाकी जो है वो आप सब भाइयों की मर्ज़ी है, जैसे आप बेहतर समझते हैं। मेरी से सिर्फ ये गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जज़ाकल्लाह। मुझे लगता है आपकी आवाज़ इतने शोर से आप मुझे बात कुमन साहब से मैंने बात करनी है। जी आप कर लो बात। कुमन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ, ਮੈਂ ਬਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਮਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਬੇ ਕੋਲ। यार अब आप लोग खुद सोचो वो कैसे मिलने जाए, वो जिस तरह की वो वहाँ है, उनकी पिक्चर लोगों के पास है, वो कैसे चला जाए? आपको तो खुद उनके फादर का कोई अरेंजमेंट करें, वो उनके पास आए, ना कि इनको भेजें। इनको जरूरी बेचारे को चाहिए ना कि अपने फादर को बुलाए, अपने फादर को बुला सके हैं, अपने जब के आए हैं गए नहीं पाकिस्तान वापस। चलो ये उनको मशवरा देना, मैं उनको कहूँगा कर सकते हो, लंदन जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, ये इनको तो बस इतना ही पड़ा है। उनके फादर पता ही नहीं है, अल्लाह को मानो, बस अल्लाह को मानो भाई, अल्लाह को मानना से ऐसा ही होता है कि बस अल्लाह को मान लो और कुछ बाकी सेवन छोड़ दो। फादर पाकिस्तान में रहते हैं कि लंदन में रहते हैं? उनके पाकिस्तान में रहते हैं। अब्बा जी पाकिस्तान है, इसका इधर ही आ जाता। चलो मैं मुलाकात होएगी तो मैं कहूँगा कि अंकल के आप आने का सामान कुछ करो, अप्लाई करो, माइट भी, और दुआ करो। आप तो बुलंद मुकाम है, शायद अल्लाह मियां सुने उनके सामान पैदा हो और वो आपके पास। और एक सवाल मेरा, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਥੀਆਂ ਤੇ ਵਹਾਣ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਆਖੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੁਆੜੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5-7 ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। बहुत आला जी। नहीं मेरा इन्होंने जो एक मतलब जितना 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं जमात में, और आपको भी इतना अरसा हो गया, ठीक है, मतलब गुस्से में बोलना या एक गाली भी निकाल देना, ऐसे तो लोग मिलेंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी कोई लोग मिलें कि जो उनको कत्ल करें? कोई मिल सकता है ऐसा? आप भी ऐसे जमात में नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, ये आपका हुस्न नज़र बहुत अच्छा है, और मैं भी ऐसे ही हुस्न नज़र रखना चाहता हूँ, मगर इंसान बड़ा प्रिडिक्टेबल है, वो नहीं उसके बारे में कुछ कर सकते। जब अगर किसी इंसान का, अब आप देखो इंग्लैंड में रहते हुए वो क्या असद इस्लाम साहब थे,
वो मारे गए यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि उनको अपनों ने नहीं मारा, बाहर से कोई आके मारा है। आपके लिए अब ये बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर बाहर की। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से नहीं कोई मार सकता, कोई अहमदी ये काम कर सकता। यार मेरा भी उस नजर यही है कि अहमदी ऐसा नहीं करेगा, मगर जितना उनके साथ, जितना उनको एग्रेशन दिखाते हैं ना, वो खौफजदा तो हैं, वो खौफजदा तो हैं। अब आप टिकटॉक की मिसाल ले लो, वो मैं सुबह भी मिसाल दे रहा था ना, ठीक है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुझे कत्ल करेंगे, ऐसा कोई मैं नहीं सोच इंसान के सकता। पास है ना उतना एग्रेशन दिखाता है। ये पाकिस्तान में लोग खंजर गन रखते हैं टिकटॉक पे भाई, वो डब में ना वो माइक रखा हुआ है, कल एक गुजरात ने निकाल दिया था। मोहम्मद अहमद साहब, दो बच्चे अगर लड़ पड़े, दो बच्चे लड़ पड़े, अहमदी बच्चे हों, तो एक दूसरे को मार दे, तो उसमें किसी की डेथ हो सकती है या नहीं? सही झगड़े वाली बात नहीं मैं कर रहा। तो फिर ये जिस बात पे वो कह रहे हैं कि नबूवत पे मुझे कत्ल करेंगे, ऐसा कोई कर सकता? यार जितना एग्रेशन उनको दिखाया है वो खौफजदा है। आपका हुस्न ज़न अपनी जगह पे है, देखें जंबा साहब ने किया हुआ है जगह पे है। हाँ नहीं मारता, नहीं है। जंबा साहब ने कितनी देर हुई है किए हुए, किसी को मारा है? कुछ भी नहीं है, किसी ने लेकिन इनको कहा है कि अपनी हदूद के अंदर रह कर जो मर्जी करो, लेकिन हदूद से बाहर जब जाओगे फिर कोई ना कोई आपको घर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात समझने की है ना। तो ये हुस्न ज़न अच्छा है कि नहीं कुछ करेगा, और इजराज भाई को भी जी वालेकुम सलाम के साथ गुजारा है वो ऐसा। हाँ जी वालेकुम सलाम। मैं क्या मोहम्मद भाई ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਰਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। मैं किससे डर, हमारा बात है ये जो आपने किया। नहीं वैसे मोहम्मद भाई वैसे वो आपका मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। जब नहीं, मैं एक बात मैं मोहम्मद भाई से वाकई करना चाहूंगा। वो मैंने एक वीडियो सुन रहा था, पता नहीं आपके साथ कोई बात कर रहा था, तो वो वाकई यही बात है, आप इनको इतना ज्यादा प्रमोट ना करें। खुदा ना खास्ता इनकी जान को खतरा हो सकता है। बस सही है, मेरी वजह से हो जाएगा, बस ठीक है। किसी की वजह से नहीं, कोई भी हो, ये सही है। मोहम्मद अहमद साहब ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰ मेरे दुआले हो जाओ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। मोहम्मद अहमद चाहता समझा के मोहम्मद अहमद चाहता कत्ल होने से कत्ल पाएगा घुमन साहब थे लगड़ा। मैं राजपूत भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनको सालों समझा के आराम से बैठा हूँ, मुझे रात में कॉल आया समझा। कामन भाई तुझे आजकल कामन नहीं हो ज्यादा। I am the common which is very uncommon. That's what I'm saying. ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं, मैं यहाँ पे ना वो बात करना चाह रहा था जब मैं आया हूँ ना, तो फिर इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी। बाकी तो सब मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बैठ के सुनता रहता हूँ। जी भाई साहब नहीं उधर ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा वो मोहम्मद अहमद साहब तुर गए ने, मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब भी है ने, CCD के सारे ही दोस्तों, ये अपना ये नहीं कह सकते चीमा साहब कि मैं मुद्दई नबूवत हाँ तो मैनू खतरा है, तो अब्बा मेरा मैनू मिलना चाहता है, तो वो अंबैसी नू कह सकता है यार। अल्लाह नू भी कह सकता है, तो नबी दुनिया के उत्ते भी उहदा हुंदा है थोड़ा बहुत। असद भाई वहाँ पे तो कह सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ उनको नहीं ना मिलेगी। पाकिस्तान में तो जितने भी मुद्दयान हैं, आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनको किसी ने मारा नहीं है, वो सीधे जेल में ही गए हैं ना। तो फिर इसमें जो है ना उनको ये प्रॉब्लम है। प्रोफेसर भाई यहाँ पर वो शो करें अपने अब्बा को अप्लाई, जजा साहब सॉरी मैं भी जज ही हाँ, घबराए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अप्लाई करें, डायरेक्ट खुला खत अम्बेसी को लिखें कि मैं एक मुद्दई नबूवत हूँ और मेरे अब्बा जी मुझे मिलना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता।
मेरी कॉल आ गई थी अजब भाई, कौन सी वो ना कौन सी एम्बेसी को असद भाई आप कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी को या हाँ नहीं पाकिस्तान जर्मन एम्बेसी को नहीं यार, अपनी इमिग्रेशन वालों को, सॉरी मैंने गलत कह दिया है, अपने जिस मुल्क में वो रहते हैं उसके जो इमिग्रेशन का जो भी महकमा होता है यार, मुझे बताना नहीं आ रहा है, आपको पता ही है। ये आप उनके वालिद साहब को जर्मनी बुलवाना चाहते हैं या ये पाकिस्तान जाएं? आप अपना वालिद साहब को जर्मनी बुला लें, वो अपने वालिद साहब को बुला लें जर्मनी, ये कह के अपने, हाँ जी वो तो बुला सकते हैं। फिर से वो ये कह सकते हैं मुतल्लिका से कि मैं वहाँ नहीं जा सकता और वो मुझे मिलना चाह रहे हैं, मेरा जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे लाने का इंतजाम करें। नहीं ये ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप लोग, मेरी बात सुनो आप लोग। रियाज भाई की मुझे कॉल आई, एक तो उन्होंने दरखास्त की है, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली का नाम ना लें, कुछ बातें ना बताएं, ये वाली प्राइवेसी नहीं करनी चाहिए, एक ये बात। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि मुझे बताएं कि आपका जो इलाका कासल है वहाँ पे सदर क्यों नहीं बनने देते आप लोग, वहाँ से हमेशा नुमाइंदा क्यों आता है, वहाँ पे सदर क्यों नहीं है। उनका कहना है कि ये वहाँ पे बदमाशी करते हैं, अपने अलावा किसी और बंदे का होल्ड नहीं होने देते, तो ये बदमाश है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैं तो नहीं वहाँ पे रहता। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात कहते हैं। सदर जमात वहाँ पे? हाँ जी सदर जमात है, हमारे कयूम साहब सदर, मैं कासल जमात में रहता हूँ जर्मनी में। अच्छा ठीक है, फिर उनको कयूम साहब है, मुझे लगता है कि वो मुंतखब सदर है या नामजद, ये बता दें। जी नामजद है वो। हाँ उसका वोटर नहीं होंगे ना उधर, नामजद करने की वजह ये हो सकती है। देखा ये हुई ना, उनके वोटर नहीं होंगे नामजद करने के, नहीं है मुंतखब नहीं मतलब और देखे अहल वोटर अगर ना हो, मेरी बात तो सही यार, एक मिनट बात सुनो। पाकिस्तानी कोई नहीं था पहले, एक अफ्रीका के जो थे वो सदर थे, सदर जमात, तो उसके बाद जो है कयूम साहब हैं। हाँ तो बात सुन लो ना, इंतखाब हो गए हुए है ना, ये जो कह रहे हैं नामजद है, नामजद का मतलब और होता है, इंतखाब होना और होता है। जजा साहब उन्होंने मिहनत पाओ, इन्होंने सदर बनवाओ ते उनको तलवाओ, काम ठीक हो जाएगा। यार आजाद भाई ये इन्होंने अभी जो कहा है, मैं हैरान होता हूँ यार इन लोगों की अकलों पे हैरान होता हूँ। ये कह रहे हैं कि जी ये मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं तो उनको सालों समझा आगे, मुझे समझ आ गई कि उसका कुछ नहीं हो सकता, बजाय इसके कि इधर उधर कुछ करें, हमें बैठ के सुनाते रहें और इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी मैं मरवाना हूँ, इस शक्ल का क्या करे आजाद राजपूत भाई, ये कौन है? अच्छा मैं ये कह रहा था, जी मैं ये कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि बाज़ औक़ात दहिंदगान या अहल वोटर नहीं होते, तो जमात का ये फिर तरीक होता है, निज़ाम तो चलाना होता है ना, तो सदर जो है वो नामजद उन्हीं में से होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। वो अगर ऐसा मामला हो तो फिर मरबी सिलसिला जो होते हैं, जहाँ भेजे होते हैं जमात का नुमाइंदा, वो ही सदर होता है, उसी को ही सदर बनाया है ना जजा साहब। हाँ, सदर जरूर होता है। अगर कोई मामला इस तरह हो कि ऐसा बंदा कोई नहीं मिल रहा जमात से कि कोई जो कि सदर बनने के लायक ना हो, तो मरबी सिलसिला जो है वो उसी को ही सदर बना दिया जाता है, जिसके बारे में, क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं लोग आपसी रंजिशों में बहुत ज़्यादा शिकायतें वगैरह जो है वो करते हैं एक दूसरे की, तो ये मामला, हाँ जी ये मामला जो इस तरह के पैदा होते हैं, और फिर अगर को मैं नामजद सदर कह रहा हूँ किसी के बारे में इसके सुने ना अवैस भाई मैं आपको बता देता हूँ आसान मिसाल से। मैं आपके बारे में, जमात के बारे में कुछ लिख दूं, आपसे मेरा कोई तनाज़ा हो गया है, या फिर मुझसे कोई तनाज़ा आपका हो गया, मैं आपके बारे में जमात के लिए लिख लूं, दोनों ही जो है वो करते हैं। तो जब दोनों ही करते हैं तो फिर ये मालूम होता है कि फिर दोनों ही दुरुस्त बंदे नहीं हैं, फिर इसलिए जमात जो है वो मुहतात के तौर पर वो जो, मेरी बात सुने ना, अब पूरी बात सुन ले, कि जो जमात का मुरब्बी होता है, जो भेजा जाता है जमात में, मौलम नहीं मुरब्बी, उसको ही जो है वो उन चार्ज इसकी दी जाती है कि वो ही सदर है, वो ही कंट्रोल रखेगा और वही ध्यान रखेगा।
अमीर अमीरों का भी वही मैं होता है। समझ गया था बात को, आपकी बात भी समझ ली। रियाज भाई जो कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है। और ये जो था ना हम सिस्टम अतात ये वो सब कुछ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵਰਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। जी जी डेविड भाई आप करो। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। बहुत आला बहुत आला। ਨਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਆ ਆਲਮ ਰਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢਿਓ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਜੱਟੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਜੱਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। प्रोफेसर भाई देख लो मेरा कोई कसूर नहीं है। ਨਾ ਜੱਜੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘੱਟੇ ਪਾਓ ਛਾਣ ਕੇ, ਘੱਟੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਛਾਣ ਕੇ। दाऊद भाई आपने ना मेरे साथ ज्यादती की है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। की करता मैं? हाँ जी, आपने जो ये धमकी दी है ना कि जजें जो है ये है, मैं यार पहले ही जजों से डरता हूँ, मेरे ससुराली है जजें सा है ना, तो फिर मैं पहले ही डर गुजार रहा हूँ। अभी आप फिर जो है वो कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है ना यार। मैं पहले ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੱਜਿਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं हम ये करे डराए तो ना हम देखे कारण ध्यान रखो। मोहम्मद अहमद जी 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਜੱਟ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਮਿਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ, ਹੁਣ ਰਾਣਿਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਿਆਂ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੱਜਿਆਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। मैं तो हैरान हो गया यार, गुफ्तगू सुन के हैरान हो गया। रियाज भाई की बात का डिफेंस क्या किया मोहम्मद अहमद साहब, आगे कहा कि वो ठीक कह रहा है। मोहम्मद अहमद साहब, हाँ जी हाँ जी, बनी इसराइल ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? मैं इतना ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन ਇਹ ही हालत ये देख लो। किसकी किसकी जैसी? रियाज भाई जैसी? अच्छा, ये चिम गोइयां किसी के ऊपर करने या क्यों तमस्कर करना, कोई इल्मी बात है तो वो कहो यार, किसी जात के ऊपर बात करने लग गए ਤੁਸੀਂ। बहरहाल कमाल है, तो सोचने वाली गल है ना, कमाल हो। ਬਾ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਲਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਸੀਸੀ ਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। नहीं, पहले कबीला नहीं मानता, उशीरत करके लड़का नहीं, अपने कबीले वालों को पहले बुलाओ, वो माने थे, फिर बाद में आगे गए थे। जो कुरान मजीद से अजद भाई पता चलता है, उशीरत के जो अल्फाज आए हैं कि अपने कबीले वालों को डराओ, खानदान को डराओ, फिर बाद में दूसरों को बारी आई थी। तो वो कबीले के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले भी थे, कबीले के अंदर मानने वाले भी थे। हजरत अली फटाफट ही मान गए, बाकी चचा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी टाइम मान गए। हाँ, वो भी दोस्त थे, बचपन से जानते थे, उनको पता था, देखा हुआ था क्या है। जो अपने मोहम्मद अहमद भाई जो हजरत अबू तालिब के बारे में कहते हैं, तो ये मैंने एक दिन सुन रहा था कहीं पे कि उन्होंने वो हजरत जाफर तैयार जो थे उनको उन्होंने कहा कि अपने भाइयों के साथ हो जाओ, या सुना है, पढ़ा है कहीं आपने? अब चचा ने बाकियों को कहा कि अपने भाई के साथ हो, जो खुद नहीं हुए ना। हजरत के बारे में तो मैंने खुद सुना है ना। हाँ,
یعنی حضرت جعفر کو ابو طالب صاحب نے کہا جب یہ دونوں عبادت کر رہے تھے نا تو حضرت جعفر طیار کو ان کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ. واہ یار علی احمد بھائی کیوں نہیں آ رہے آج ہمارے ساتھ؟ ایک اور کیا کرنا تھا اور کیا صحیح بات ہے یار. آپ لوگ بات کرو میں ابھی آتا ہوں ایک کام کر کے, مجھے 2 منٹ دینا. ہاں جی, ایک سوال کیا جاتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مہدی ہوں, اور مہدی کی حدیثوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری جو ہیں وہ حدیثیں محدوش ہیں, ماننے کے قابل نہیں ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں اگر کوئی دوست سمجھتا ہے. جب بھائی السلام علیکم. جب بھائی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن احادیث کو مخدوش کہا ہے نا, وہ والی ہیں جس میں فطرت فاطمہ اور بنو امیہ یا وہ کیا نام ہے عباسیوں سے, یہ جتنی بھی ہے نا یہ حدیث جو ہیں وہ ان کو مخدوش کہا ہے. جو حدیث ہے نا ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل والی, اس کو حضور نے صحیح حدیث کہا ہے. پہلے اس کو بھی شاید غلط کہا ہو لیکن مطلب اس کو بھی مخدوش کہا ہو, اس پہ جرا تو اس پہ بھی ہے, لیکن جو اتھینٹسٹی ہے جو اس کی جو آخر میں بیان کہ وہ حدیث جو مہدی لال مہدی اللہ عیسیٰ ہے نا وہ درست ہے, کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ مہدی ہوتا ہے. اور اس کی تشریح بھی موجود ہے, میں آپ کو نکال کے نا کس دن میں بھیج دوں گا. غالباً یہ ملفوظات میں ہے. جزاکم اللہ. تو ان حدیث کو ہاں جی ان حدیثوں کو جن کے بارے میں نام ہوگا یہ اس طرح ہوگا وہ ہوگا, یعنی کہ جو سنگلر امام کسی کو امام مہدی کہا جاتا ہے نا اس کا نام محمد ہوگا, ان کو جو ہے مخصوص کہا. اور اس پہ جرا ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے نا تو ابو مروان اور مسرور لڑکا ہے, دونوں ینگ نوجوان ہمارے, انہوں نے اس پہ کافی ورک آؤٹ کیا ہوا ہے ان حدیث پہ. تو ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو سارے حوالے جہاں جس پہ جرا ہوئی ہے اور جس نے کی ہے وہ سارے آپ کو دے سکتے ہیں اس کے اوپر. وہ ہاں جی کون سا حوالہ ملفوظات کا یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے. محمد ابھی ذہن میں نہیں ہے, وہ میں ڈھونڈ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں دوبارہ لکھا ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, سب احمدیوں کو اس جواب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جواب ہے اس کا. کس بات کا کوشچن کیا ہے اور ملفوظات سے کیا چاہیے, آواز چلی گئی تھی, دوبارہ بتاؤ. محمد بھائی وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ وہ جو احادیث جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فطرت فاطمہ سے ہوں گے یا ان کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, یہ والی ساری حدیث جو ہیں ان پہ جرا ہے. اور ان کا اور جرا تھوڑی بھی نہیں بہت زیادہ جرا ہے اور یہ مخدوش ہیں. اور جو حدیث کتنی پایا کی الفاظ ہیں اس کے وہ ہے لل مہدی و اللہ عیسیٰ, ایک ہی ہے اور کچھ بھی نہیں, باقی سب کو حضور نے کہا کہ یہ فارغ ہے, ایک ہی ٹھیک ہے بس. پہلے اس کو بھی کہا تھا, لیکن جب وہ جب اس کا کہتے ہیں نا کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تحقیق کا زمانہ تھا, جب زمانہ تحقیق تھا اس وقت تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ملی سامنے آئیں اور پرانے بزرگان کے قول بھی یہی نظر آئے کہ انہوں نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی پایا اور ان کے اوپر بہت جرا کی. پھر آخر جو ہے وہ المہدی اللہ عیسیٰ والی جو ہے اس میں جو ہے وہ اس پر اتفاق جو ہے وہ ہو گیا ہے. ایک ترک میں اللہ عیسیٰ مہدی اللہ عیسیٰ بھی ہے اور ایک ترک میں لال مہدی اللہ عیسیٰ ہے. لا مہدی ایک میں ہے لا مہدی اللہ عیسیٰ اور ایک میں ہے لال مہدی اللہ عیسیٰ, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے تقریباً. اچھا جی ایک ہی معنی دونوں کا. ہاں جی کوئی لا ایک ہی معنی ہے, لا ایک ہی معنی کا.
हमारा चेक कर लेंगे इसको, उसको चेक कर लें अगर आपके पास है कोई लुगत की किताब है तो चेक कर लें उसमें से। जमनाई से ना पूछिएगा। नहीं, मैंने किसी से भी नहीं पूछना मेरा। और जमनाई जो है वो बड़े बड़े शोशे छोड़ती है। मैं समझता था मैं ही सबसे बड़े छोड़ता हूँ, जमनाई मेरे से भी ज्यादा लंबे छोड़ती है। जेमिनी भी जो डाटा मौजूद है वहीं से देती है, खुद से नहीं देखना आ सकता। मोहम्मद अहमद भाई, अक्सर लोग जो हैं आकर इस तरह का सवाल जो है वो उठाते हैं कि जब कहा जाता है कि वो महदी हैं, तो उन्होंने कहा कि महदी की तो सारी हदीसें जो हैं वो महदूश हैं, वो तो मानने के काबिल नहीं है। ये एक चीज़ जो है उज़्र के तौर पर पेश की जाती है। तो फिर मखदूश कहते हैं लोग, फिर हजूरिया का हवाला लेके आते हैं तो कहते हैं कि फिर तुम लोग क्यों मानते हो, वो तो कोई भी हदीसें क्यों पेश करते हो, वो तो कोई भी हदीस नहीं मानते थे। सवाल लेके आते हैं। ये बात ठीक है आपकी। आवाज़ थोड़ी कम रखें। ज़हीर भाई इसके बारे में बताएंगे। ज़हीर भाई आ गए, ज़हीर भाई को ले लें, और अली अहमद भाई भी आ गए हैं, उनको भी लें ताकि बातें वाज़ेह हो सकें। जी जी, आपको पता है मैं तो वालेकुम अस्सलाम, मैं जो बात कहूँगा वो कुछ आप हजरात को भी चुभेगी। देखें जब पूरी बात बताता हूँ। मिर्जा इंजीनियर कहता है सूरह अराफ की आयत नंबर 188 मुसलमान के सामने नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो दूसरे मुसलमान के जज्बात मजरूह कर रहा होगा। मैं आता हूँ, इस तरफ आता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना इसका मौजू से जबरदस्त ताल्लुक है। अब उस आयत को जब देखा सूरह अराफ 188, उसमें नबी का दायरे कार बताया गया है कि नबी किस दायरे के अंदर काम करता है। मतलब किसी को अरबी आने से या इल्हाम आने से या वही होने से क्या नबी कानून कुदरत चेंज कर देगा? नहीं। अरबी आने से कोई कानून कुदरत चेंज कर सकता है? कानून कुदरत के अंदर लुगत लिखी जाती है, कानून कुदरत के अंदर अरबी बोली जाती है। अच्छा, इसका ये जो आप बात कर रहे हैं इससे ताल्लुक क्या है? अब सूरह अराफ 188 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के इल्म का इनकार कर दिया, और आपने फरमाया कि अगर मुझे, बड़ी सिंपल सी बात बताई आपने कहा कि अगर मुझे मुस्तकबिल का इल्म हो तो स्टॉक मार्केट में मैं पैसा ना लगा दूं। आपने ये फरमाया कि नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मुस्तकबिल का इल्म हो तो मैं अपने लिए दुनियावी फायदे जमा कर लूं और मुझे कोई तकलीफ भी ना पहुंचे। इनडायरेक्टली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक आदमी अगर 10 रुपए एक ऐसे स्टॉक में लगा दे कि उसको मुस्तकबिल का पता हो कि इसने गिरना ही नहीं है, स्टॉक ने ऊपर से ऊपर जाना है, वो करोड़पति हो जाए। इनडायरेक्टली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी है। अच्छा, अब देखना ये है कि एक तरफ नबी कह रहा है कि मुझे मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, दूसरी तरफ नबी अपनी वही बयान कर रहा है। ये क्या है? ये क्या मसला है? ये मसला ये है कि नबी का कभी भी ये दावा नहीं है कि वो अपनी वही के जरिए, गौर से सुनिए, या इल्हाम के जरिए लॉटरी के 6 नंबर बता देगा। अगर जरा हौसले से सुनिएगा ये बात, मैं ये जानता हूं कि हमारा ये ईमान है कि एक आदमी को लॉटरी के 6 नंबर ख्वाब में पता चल सकते हैं। ये मानती है, साइंस भी मानती है कि ये पॉसिबल है, लेकिन वो हमेशा यही करना शुरू कर दे, नामुमकिन है। बात समझ में आ गई आपकी खुल के? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या नबी जब इल्हाम और वही का दावा कर रहा है, क्या नबी दुनिया को हिसाब के फार्मूले बता सकता है? क्या नबी लॉटरी के 6 नंबर बता सकता है? नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये है कि नबी जब ये कहता है कि मुझे मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, अब ये जो जितने सवालात पैदा हो रहे हैं इमाम महदी की आमद पर, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं।
नबी कर क्या अब सकता है फिर, ज़हीर भाई? हाँ, नबी करता क्या, कर क्या सकता है? नबी की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या होती है, सबसे बड़ी बहादुरी, कि वो नबूवत का दावा करता है और उस पर तकालीफ का पहाड़ नाजिल हो जाता है और वो एक स्टेप भी पीछे नहीं लेता। ये कमाल है उसका। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत आला। ज़हीर भाई, अली अहमद भाई को मौका दें, फिर वापस आपके पास आते हैं। अली अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली अहमद भाई आप कोई बात कर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा ये जो इमाम मेहदी के मुतालिक बात हो रही थी, जी, इमाम मेहदी की जो अहादीस हैं उन सबको तो हज़रत साहब ने मखदूश और साकतुल एतबार यानी कि एतबार के काबिल ही नहीं है। हाँ जी, और ऐसे ही है। खदशे हैं उसमें बेशुमार, एक भी हदीस उनमें ठीक नहीं है। अच्छा, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करनी चाहता हूँ। ये जो आपने मसला उठाया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आप चैट जीपीटी पे इस वक्त जाके पूछें, इसी वक्त, कि तत्बीक क्या चीज होती है, इसी वक्त चैट जीपीटी से जाके पूछें कि तत्बीक क्या चीज होती है, वो पता है क्या जवाब देगा? वो ये जवाब देगा कि जब आप कुरान में दो मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करने का नाम तत्बीक होता है, और उसमें वो मिसाल देता है बड़ी जबरदस्त। ये मिसाल हर मुसलमान को पता है। कहता है जैसे कुरान इंसान की पैदाइश की मिसाल देता है, कुरान में लिखा है खुश्क मट्टी, गीली मट्टी, नुतफा, खनकती मट्टी, गोश्त का लोथड़ा। अब इनमें तत्बीक पैदा की जाती है। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो लिखा है ना, वो एक्चुअली तत्बीक समझाई है आपको। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने इल्हाम और वही पर एक क्लेम किया है। वो क्लेम ऐसा है कि सारी दुनिया उनकी मुखालिफ हो गई। तो वीर कादियानी दज्जाल लानती मलून मिर्जा खंजीर कादियानी लांती को नीचे उतारो यार, लांती को नीचे उतारो। बड़ा खिलड़िया सी को बीमार जे लगदा जे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गेड़ा बहुत लंबा करा रहे हैं भाई, गेड़ा। मुझे इजाजत दें तहीर भाई, मैं भाई को जवाब दे दूं इस बात का। जज़ाकल्लाह। यार वन बाय वन क्यों नहीं करते? सभी आलम है, एक इंसान अगर बात कर रहा है उस पर भरोसा कर लें, और अगर कोई कमी रह जाए कि भाई ये जवाब सही नहीं दिया या इसमें इस चीज की कमी है, मुझे मौका दिया जाए, फिर तो समझ मेरा जवाब बात कर रहे उनको करने दो। नहीं, ये आगे इन्होंने पास ले लिया, ये भी उन्हीं के साथ हैं, ये लंबा गेड़ा कराते हैं। कराएं जी, गेड़ा कराएं। काशिफ साहब आप शुरू हो जाए। काशिफ भाई को देना चाहिए। चलो जी काशिफ पहली बात तो ये है मोहम्मद अहमद भाई को कहें कि जबान इस्तेमाल सही करें। ये मोहम्मद अहमद भाई ये गेड़ा ना कहें यार जी यार, वो कोई और बंदा था अहमद भाई, इनसे दरख्वास्त है मेरी आपकी वसातत से कि ये जबान अपनी का इस्तेमाल दुरुस्त मान लिया आप गेड़ा नहीं करेंगे। ठीक, अभी आप नहीं आप जरा लगाया ना भाई, आपकी जबान जरा जी, आप देखें क्या बनता है। ले मैंने इन्हें कह दिया गेड़ा नहीं करेंगे, चले। हाँ जी प्लीज। अब भी इन्होंने कोई बात करनी है कर लें, मैं बोलता हूं फिर बाद में। दरमियान में इन्होंने बिल्कुल अगर बोला ना मोहम्मद अहमद भाई मेरी बात के दरमियान में, इनको नीचे उतार के सुनाएंगे आप। अच्छा जी, आप भी कोशिश कीजिएगा। मैं 2-3 मिनट ले लेते हैं, 3 मिनट में आप कंप्लीट। नहीं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं मुख्तसर बात करूंगा प्यारे भाई। ठीक है मुख्तसर बात। जी जज़ाकुमुल्लाह आसन अल जज़ा। बात ये है, एक बात को पकड़ लेते हैं हमारे प्यारे मुसलमान भाई और उसको बुनियाद बना देते हैं, ना गौर करते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया है। असल बात यह है कि उन्होंने तो खुद इमाम महदी मसीह मौऊद होने का दावा फरमाया है, और खुद उन्होंने उन अहादीस को बयान फरमाया है जिसको ये बयान ही नहीं करते ये लोग, कि जी वो इमाम महदी के मुतल्लिक़ अहादीस के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। भाई उन्होंने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अहादीस को भी पेश फरमाया है जो सही अहादीस हैं, जिसमें ईसा इब्ने मरियम को ही इमाम महदी करार दिया गया है। यानी जो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर इमाम महदी ने पैदा होना है, उसी को ही ईसा इब्ने मरियम का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। इनका ये अकीदा
کہ امام مہدی الگ وجود ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ جی اب بات کریں۔ چلیں، بہت شکریہ۔ علی احمد بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ تو پلیز آپ کر دیں۔ آپ کو آنسر اچھا لگا، پسند آیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ علی احمد بھائی میں نے یہ بات کہنی تھی نے کہ انہوں نے کہا ہے امام مہدی کی ساری حدیثیں، ساری حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے؟ جب ساری حدیثیں غلط ہیں تو پھر امام مہدی کا دعویٰ کس چیز پہ؟ اور جو ایک حدیث انہوں نے لی ہے وہ ہے لل مہدی الا عیسیٰ، مہدی کوئی نہیں، صرف عیسیٰ ہی، تو مہدی کا تو نام ختم ہو گیا، تو اب دعویٰ کیسے؟ نہیں ختم نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کریں، یہ غلطی ہو گئی آپ سے، ان سے حوالہ لگوا لیں، ان سے حوالہ لگوا لیں، غلطی ہو گئی، وہ حوالہ ہے۔ پہلے ان سے پوچھ تو لیں، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے پھر کچھ۔ جی محمد احمد بھائی مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں بات کر لوں۔ بھائی اس سے پہلے پوچھ لیں، ان کی بات مکمل ہو گئی ہے تو مکمل کروا لیں، مکمل کروا لیں۔ ججا پیارے بھائی، ججا بھائی پیارے بھائی، دینے دیں، میری بات تو اتنی ہوتی ہے نا، میری بات تو لمبی ہے ہی نہیں، اچھا آپ کی بات مکمل ہو ختم ہوگی بات، کریں جی بات۔ کون دینا چاہ رہے ہیں بھائی آنسر اس بات کا؟ جی محمد احمد بھائی مجھے تھوڑا سا بھائی جواب دینے سے پہلے ان سے حوالہ لگوائیں، ٹھیک ہے پہلے حوالہ لگوائیں۔ حوالہ بھی لگوا لیتے ہیں۔ کاشف بھائی آپ ایک تو یہ کہ آنسر کریں آپ، پر علی بھائی آپ ریفرنس بتا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ میں ابھی دے دیتا ہوں، ہاں جی آپ مجھے دے، میں وہ کھول کے ان کو سب بھائی اور اگر حوالے میں یہ لکھا ہوگا تو پھر سبحان اللہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ محمد احمد بھائی کر دیں گے، امام مہدی کا دعویٰ نہیں ہے، میں حوالہ دے علی احمد بھائی اب آپ صرف حوالہ لگائیں گے، آپ کی بات میں حوالہ لگا دیتا ہوں، حوالہ لگانے کے بعد پھر بھی یہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ حوالہ لگائیں، اس طرح نا مچھلی منڈی بن جاتی ہے۔ حوالہ میں نے لگا دیا، میں حوالہ محمد احمد لگا بھائی دیتا ان کو میوٹ لگائیں، محمد احمد بھائی حوالہ میں نے لگا دیا، اس کو بڑا کر لیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جس نے حوالہ لگایا ہے وہی پڑھ بھی دے، ججا بھائی پڑھ بھی دیں آپ۔ اسکرین بڑی کریں گے تو پڑھ دیتے ہیں، اسکرین بڑی کریں نا یہ۔ ججا بھائی وہ سارا پینل چینج کرنا پڑے گا جو کہ وہ کر سکتے ہیں جو ہیں۔ اچھا پھر میں دوسرے موبائل سے میں پڑھ کر نہیں آپ آگے آپ آگے۔ اچھا ٹھیک۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، ہاں جی یہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ، پھول لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں۔ ہاں جی پڑھے کہہ رہے ہیں شروع سے پڑھیں اوپر سے۔ علی احمد بھائی آپ نے چپ کرنا ہے، آپ نے اب نہیں بولنا، ججا بھائی بات کریں گے، اب آپ چپ کر جائیں، پورے صفحہ پڑھیں اپنا ججا بھائی۔ جی پڑھ دیتا۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی، یعنی جو لوگوں کا اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مہدی ہوں جو مصدق من ولد فاطمہ من اطراتی وغیرہ سے ہے، بلکہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں ہے کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ ہاں ساتھ اس کے کہ جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر یعنی یہ نہیں کہتے کہ وہ دوسرے اور نہیں کہتے، سب کو بھی ساتھ لیا اور بتاتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایسے میں کہتا ہوں مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، جس قدر افطرا حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیثوں میں ایسا افطرا نہیں ہوا۔ خلیفہ عباسی وغیرہ کے عہد میں خلفاء کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود اقرار دیں، پس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا، بعض میں بنی فاطمہ میں سے، اور بعض حدیثوں میں سے یہ بھی ہے کہ رجل الامتی، کہ وہ ایک آدمی میری
لا عیسیٰ والی، اس میں مہدی کا لفظ بھی ہے، عیسیٰ کا لفظ، اس کو صحیح حدیث قرار دے رہے ہیں. اب آپ بتائیں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ جی علی احمد بھائی آپ کی باری ہے، اب آپ اس پہ. اور جب تک علی بھائی یہ نہیں کہتے کہ میری بات مکمل ہے، علی بھائی جب تک کوئی یہ علی بھائی اپنی بات مکمل کر کے کہتے نہیں ہے نا کہ میری یہاں بات مکمل ہے، کوئی دے آنسر، تب تک کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہ کرے نا. جیسے ججا بھائی انٹرپٹ نہیں ہوئے تو سب کو ایسے ہی بات کریں تاکہ مزہ آئے آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا. جی علی بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب پڑھ دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری حدیثیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا، تمام محدثین کا یہ قول ہے، ان حدیثوں میں جتنا افتراء، جتنا جھوٹ گھڑا گیا ہے، جتنی ساری کی ساری حدیثوں کے متعلق یہ بات کی گئی ہے نا، تو اور ایک ہی حدیث ہے سوال بھی کر لوں گا، بات واضح ہو جائے گی. میرے کس سوال کا جواب دینے جا رہے ہو بھائی؟ میری ایسے ٹائم فضول ضائع نہ کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اوکے جی جی آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ہم فارغ ہیں بالکل. آپ سے یہ ہے، بات میرے یہ ہے سوال اب آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں درمیان میں. پیارے بھائی اب آپ سوال لے لو نا بھائی. میرا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے ویسی بات کرنی کرتے آپ نے سوال مجھے اجازت نہیں. علی احمد بھائی میری بات پتہ کہ آپ نے خود بولا تھا کہ یہاں میری بات مکمل ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کاشف ہمیں یہی انتظار کرنا چاہیے. کاشف صاحب آپ خود مائک پکڑا دیں گے، بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے پلیز. میں نے جب حوالہ نہیں لگایا گیا تھا، جب حوالہ ججا بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، محمد احمد بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ جب حوالہ نہیں بھی لگایا گیا تھا تو میں نے اس وقت کیا بات بیان کی تھی. میں نے کہا تھا کہ مہدی کی تمام حدیثوں کا انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان حدیثوں کو صحیح حدیثیں مانا ہے، ٹھیک قرار دیا ہے. خود امام مہدی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جن صحیح احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام مہدی نے آنا ہے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یعنی یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی الگ وجود ہوگا، عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہوگا، اس عقیدے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے. اب میں نے علی احمد بھائی سے سوال کیا کہ وہ تو امام مہدی کے بارے میں حدیثوں کو وہ ایک چھوٹا سا ایک لائن پڑھ کر کہہ رہے ہیں، اس میں جو حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں مرزا صاحب، اس میں تو مہدی کا لفظ موجود ہے. جب مہدی کا لفظ بھی موجود ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا لفظ بھی موجود ہے، تو کیا اب بتائیں اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں کہ نہیں قرار دے رہے؟ آپ کی سوال کا جواب تو آ گیا پیارے بھائی. اب بتائیں اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ جی بولیں. اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ابھی ججا صاحب نے جو پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ساری کی ساری حدیثیں مخدوش اور ساقط الاعتبار ہیں. صرف ایک حدیث انہوں نے لی ہے جس میں کہا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی کا انکار ہے. ہمیں کیا ضرورت تھی وہ حدیث کا حوالہ لگانے کی؟
जज्जा भाई को अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने, आपने अभी मुंह से निकाला सिर्फ कि भाई इमाम महदी की तमाम हदीसों को गलत करार दे रहे हैं, उन्होंने उस हदीस वो हवाला निकाल दिया, उसमें एक हदीस खुद मिर्जा साहब पेश फरमा रहे हैं जिसमें महदी का लफ्ज मौजूद है, उसको सही करार दे रहे हैं। आपका ये एतराज कि महदी की तमाम हदीसों को गलत करार दिया है, इससे आपके एतराज का जवाब आ गया है। अब आप मुझे ये बता दें, आपका एतराज उस सूरत में 100% दुरुस्त ठहरता अगर ये हदीस भी वो पेश ना फरमाते। मैंने आपसे सवाल किया था, ये हदीस जिसको सही कह रहे हैं, इसमें महदी का लफ्ज जब आ गया है या नहीं आया, आप हाँ या ना में जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं जिसका जवाब आपको आ चुका है। मेरा ख्याल है अब कोई और बात कर लें। मोहम्मद अहमद भाई, तीसरी दफा तो हम बात बता रहे हैं, ये इन्होंने इसी बात पे अड़े रहना है और मेरा कीमती वक्त जाया होगा, क्योंकि हम बड़े कीमती वजूद हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि एक ही कज बैसी करते जाएं एक ही बात पर। जज़ाकमुल्लाह। मेरे किस सवाल का ये जवाब दिया इन्होंने इतना लंबा? मैंने तो इनसे क्या सवाल किया था, इनसे जरा पूछे मेरे किस बात खत्म हो गई, अब बात को और करें। जवाब आ गया, सुनने वाले इसका फैसला आप जो भी बात करें, अली अहमद साहब इसका फैसला आप खामोश हो जाए ना यार, आपकी बात खत्म हो गई है, सुनने आप वालों म्यूट ने लगाएं। सुन लिया है। जज़ाकल्लाह। आप म्यूट लगाएं, आपकी बात खत्म हो चुकी। मैंने आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे किस सवाल का आपने इतना लंबा जवाब दिया? सवाल मेरा क्या था ये बता दें। मेरा आपका सवाल ये था कि मिर्जा साहब ने इमाम महदी की तमाम हदीसों को मखदूश करार दिया है, गलत करार दिया है, सही करार नहीं दिया। अब आपने एक दावा किया, मिर्जा साहब के ऊपर एतराज किया, ठीक हो गया सर। अब जज्जा भाई ने, ये आखिरी दफा बता रहा हूं, उसके बाद मेरा वक्त आपसे ज्यादा कीमती है, मैं आपसे ज्यादा कीमती वजूद हूं, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा, आप किसी और से बात कर, क्योंकि मैं बहुत कीमती आदमी हूं, आपसे ज्यादा मेरी वैल्यू है। बात यह है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वसलाम पर आपने एतराज ये किया कि उन्होंने महदी वाली तमाम हदीसों को गलत करार दिया है। जो आपने एतराज किया ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजो, उसका सफ़ा भी हमने खुद लगा दिया आपकी खिदमत में, आपके सामने पेश कर दिया। उसमें खुद जो जिस हदीस को सही करार दे रहे हैं, उन हदीसों के मुकाबले में जिसमें इमाम महदी को अलग वजूद करार दिया है, उसको सही करार दे रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि लल महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम वाली हदीस जो है वो उन हदीसों के मुकाबले में सही है। आपका एतराज सिर्फ एक सूरत में वैलिड रहेगा और आपको जवाब नहीं आएगा अगर वो वाली हदीस को भी सही करार ना देते जिसमें महदी का लफ्ज आता। आपने महदी के बारे में सवाल किया था, उसका जवाब तो सुनने वालों ने सुन लिया है। अब बार बार एक ही बात करेंगे और मुझे पता है आप क़यामत तक ये बात नहीं कह सकते। मैंने आपसे सवाल किया अभी, ये जो हदीस को सही करार दे रहे हैं इसमें महदी का लफ्ज आया है कि नहीं आया, और आपने तस्लीम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ इस हदीस को वो सही करार दे रहे हैं। जब महदी वाली इस हदीस को सही करार दे रहे हैं तो इतराज खत्म हो गया। तो अब आप कोई और बात कर लें, मैं अब बात नहीं करूंगा। मोहम्मद अहमद भाई, ओवर टू यू। ठीक है, अली अहमद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद अहमद भाई, मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा था कि मेरे किस सवाल का ये जवाब दिया है, तो वो सवाल क्या होता है एक लाइन का, इन्होंने क्या एक लंबी तकरीर। मैंने तो सवाल पूछा था, मेरे किस सवाल का जवाब दिया, इतनी बात पूछी थी। अच्छा, उन्होंने अपनी बात सवाल कर लिए। आप एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैंने इनसे सिर्फ इतना सवाल किया था कि उन्होंने सारी हदीसें मखदूश साख्तुल एतबार एतबार के काबिल नहीं है ये करार दिया है, और एक हदीस को उन्होंने ठीक करार दिया है। इसके अलावा आप किसी हदीस को मानते हैं? अच्छा, इजाजत हो तो मैं इसका जवाब सवाल ये है कि इस हदीस के अलावा आप किसी हदीस को मानते हैं? ज़हीर भाई, आपने इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस करना है। वो सवाल के मतलब हिस्से इस तरह से 3 बनते हैं कि हुजूर ने पहले तमाम हदीस को रिजेक्ट किया और उसके बाद एक हदीस को लिया जो कि ऑलरेडी सेटल बात है, जो मुझे समझ आई है। फिर वो कह रहे हैं इसके अलावा कोई ऐसी हदीस है जो आप मानते हैं। ये है एक्चुअल सवाल, एक्चुअल फ्रेम जो बनता है। आपके सामने रखता हूँ। ये सारी टकराती हैं, ये ठीक है, ये बता। कुरान की आयत है, इन्नमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम। जज़ीर भाई एक सेकंड, ज़हीर भाई के बात कर लेना। जी ज़हीर भाई आप कंटिन्यू। कुरान की आयत है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, इस टाइप की कि तुम्हारी औलाद
اور تمہاری بیویاں جو ہیں وہ فتنہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نبی بھی کر رہا ہے, نبی بھی شادیاں کر رہا ہے, نبی بھی کمائی کر رہا ہے. اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فتنے کی جڑ ہیں, نبی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اب آپ کو جواب مل جائے گا اس کا. قرآن نے آپ کی اولاد کو, آپ کی بیویوں کو, آپ کی دنیاوی اس کو فتنہ کہا ہے کہ یہ فتنے کی جڑ ہے. اس میں جواب کہاں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پورا دائرہ دیکھا جاتا ہے. قرآن ایک لٹریچر ہے, اسی طرح حدیث بھی ایک لٹریچر ہے. جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا, پرندے اسے اچک لیں گے, ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. یہ میں بار بار کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ یار یہ کتاب جو ہے وہ لٹریچر ہے, لٹریچر کو سمجھنا کیسے ہے, پورا دائرہ دیکھنا پڑے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے وہ بھائی بتا کے گئے, انہوں نے تو خود دعویٰ کیا ہے, تو وہ اپنے ہی دعوے کو, اپنی ہی احادیث کو, اپنی ہی سچائی, یہ تو مسلمانوں کا بلیو ہے. اب مجھے یہ بتائیں, میں احمد علی صاحب سے صرف اتنا پوچھتا ہوں, ہم کو رکھ دیں سائیڈ پہ, یہ اپنے آج کے ایمان کے مطابق کیا مستقبل کے قادیانی ہیں یا نہیں؟ یہ کسی پر ایمان لائیں گے یا نہیں؟ تو جو یہ ایمان لے کے آئیں گے, کیا وہ قانون قدرت ہے؟ کیا وہ قانون قدرت ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ وہ ہے ہی نہیں قانون قدرت. مستقبل کے قادیانی تو یہ ہیں 100% اپنے آج کے ایمان کے مطابق. سوال یہ ہے کہ جو ان کا ایمان ہے, کیا اس قانون قدرت کے تحت نبی آتا ہے؟ اب سوال یہ, میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد جو ہے فتنہ ہے, تمہاری بیویاں فتنہ ہے, اور یہ کام نبی بھی کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس پر وحی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ ہے, وہ فتنہ اپنے گھر میں پال رہے ہیں, نعوذ باللہ. اب ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ قرآن نے کس انداز میں یہ بات کی ہے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی علی احمد بھائی, آپ کا کوشچن تھا, آپ کو سمجھ آئی کچھ جو ظہیر بھائی نے بتایا؟ سمجھ آئیے. میں نے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے ساری حدیثیں کہیں ہیں غلط ہیں, ساقط الاعتبار ہیں, یہ ایک حدیث ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی حدیث آپ ٹھیک مانتے ہیں؟ بس اتنا سوال تھا, اس کا جواب انہوں نے دے دیا. آپ کو سمجھ میں آیا؟ کوئی حدیث بتائیے انہوں نے. میں نہیں اس پہ کچھ بتاؤں گا. ججا بھائی کوئی حدیث اگر بتائی ہو, سمجھ میں نہیں آئی. جو میں نے بتا دیا ہے, باقی کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی درست ہیں تو ان کو بھی مان لیتے ہیں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرا ایک, اگر مجھے کوئی اور حدیث اگر پتا ہو تو وہ شیئر کریں. اب فی الحال تو کوئی پتہ نہیں, مجھے اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی مجھے تو اس کا پتا ہے, اس کے بارے میں. ججا بھائی ایک منٹ, یہ جو بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں نا, پہلے اس پہ بھی غور کریں. یہ حدیث کا ترجمہ یہ خود اپنی طرف سے بہت غلط کر رہے ہیں کہ کوئی مہدی نہیں کہتے ہیں, کہ مہدی ہے ہی نہیں, عیسیٰ ہے بس. حالانکہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے, یعنی کہ عیسیٰ خود مہدی ہے. یہ اس حدیث کا ترجمہ حضرت مسیح موعود صاحب نے وہی لکھا ہوا وہاں پہ, تو پلیز اس کی کریکشن کر لیں. ویسے نہیں, مہدی کون سا ایسا نبی ہے جو مہدی نہیں ہوتا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ اصل میں وہ ترجمہ غلط کر رہے تھے اور بار بار یہی آپ کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو وہی ہوتا ہے, مہدی ہے کوئی نہیں, وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائے, پہلے عیسیٰ بنے گا تو پھر ہدایت پائے گا. تو کیا کر رہے ہو, پھر شور مچا دیا. سبحان اللہ بھائی, آپ ججا بھائی پہ بھروسہ کر لو, یا ججا بھائی آپ سبحان اللہ. اچھا جی, میں نماز پڑھ لیتا ہوں. ججا بھائی آپ بات حد ہے یار, دونوں ہی کر رہے. مجھے پتا ہے, مطلب یو گائز نوز ایوری تھنگ ہے نا, پر سوری محمد احمد صاحب, سوری, میں معذرت کرتا ہوں. ہاں جی, ابھی ایک بندہ بات کرے. جی علی احمد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اتنا سوال اس سے کیا ہے کہ مرزا صاحب نے ساری حدیثیں مخدوش اور ساقط الاعتبار کے قرار دی. ایک حدیث والی حدیث ٹھیک قرار دی ہے. کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ ایسے لکھا ہوا ہے. ہاں جی, کیا ججا صاحب آپ اس پہ متفق ہیں؟ جی ججا بھائی سے اتفاق کرتے ہیں, کوئی اب حدیث, باقی ساری حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں. وہ باقی اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اعتبار تو نہیں ہو سکتا ان کے اوپر. جب ٹکراتی ہوں کوئی یہی ہے کہ ساری حدیثیں ساقط الاعتبار ہیں, اعتبار کے قابل نہیں. کیا اس بات سے آپ ایگری ہیں؟ لفظ ساری کا استعمال کرتے ہیں. لفظ ساری جو ہے, ایک منٹ محمد احمد بھائی, آپ ایگری ہیں؟ ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے.
वो क्या? हाँ जी, सारी जो हैं वो जितनी भी उन्होंने बताई हैं, जिस तरह उन्होंने बताई हैं, वो तो काबिले एतबार नहीं है, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने बताया है उसके ऊपर मेरा ध्यान है कि वो बताते हैं कि वो हदीस जो है जो इब्ने माजा ने लिखी है वो उन दूसरी बातों के मुकाबले में बहुत बेहतर है और दुरुस्त है। आप सही कह रहे हैं। अली अहमद भाई, मैं इसको करता हूँ। देखो, इसको भी इनके साथ ही जोड़ा है। जजा भाई लिसन, मैं जो समझा हूँ ना बात, अली भाई का क्वेश्चन या आपकी एक्सप्लेनेशन, देखो अली भाई क्या कह रहे हैं, सपोज फर्ज करते हैं 50 हदीसें हैं एक टॉपिक पे, राइट? 50 हदीसें हैं और 49 हुजूर कहते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, अब्बासियों ने कुछ कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, ये कोई भी एतबार के लायक नहीं है। कितनी? 49, उसको वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, एक ये सही है। तो अली अहमद भाई आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ एक को मान रहे हो और बाकी, जैसा कि हज़रत साहब ने कहा है ना, यही समझते हो ना कि 49 बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, इनको साइड पर रख दो, इन पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। नहीं अवैस भाई ऐसे नहीं है, ये नहीं कहा मेरे साहब ने कि मैं कुलियतन इनके ऊपर एतबार, उन्होंने ये एक शोभा अपना जो है वो ज़ाहिर किया है इस तहरीर में कि पहले लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर यही बात करते आए, वरना उन्होंने तो जो है वो फातमी होने के मुकाबले में भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर ज़ाहिर किया है और दूसरी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर किया है, लेकिन हैं तो आपस में ये टकराती हुई, बज़ाहिर ये टकराती हैं, लेकिन इनकी मतलब फिर आप कह रहे हैं कि हज़रत साहब ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये 49 टकरा रही हैं, वैसे एक को तो मान लिया हुआ है वो सही है, बज़ाहिर 49 टकरा तो रही हैं, मगर मैं इन सब को मानता हूँ। आप ये हज़रत साहब की बात समझ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हज़रत साहब ने ये कहा है कि बज़ाहिर टकरा रही हैं और बाकी सारे मौलवी भी तो यही कहते हैं, मगर वो सारे भी यही मानते हैं, ये कह रहे हैं आप? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने यही बात बताई। अच्छा, ये भी नहीं कहा जो मैंने पहले कहा था, वो भी नहीं कहा, तो फिर कहा क्या है? उन्होंने ये कहा कि सर्च से जो साबित हुआ है कि ये जो हदीसें हैं ये एक दूसरे से टकराती हैं और काबिले एतबार नहीं हैं। ठीक हो गया, ये काबिले एतबार नहीं है, टकराती हैं ये 49, लेकिन इनमें से जो एक हदीस है जो इब्ने माजा में बताई है, अलाल महदी इल्ला ईसा, बिल्कुल ठीक है। इसी अब आपकी इसी एग्जांपल लेते हैं, आप मैं जो आपकी बात समझाऊं, हजूर कह रहे हैं कि ये 49 जो हैं ये काबिल एतबार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकी सारे और भी मुहद्दिस कहते हैं, इनमें सब में इख्तलाफ है, किसी में कोई बात लिखी है, किसी में कोई बात लिखी है, ये भरोसे के लायक नहीं है, मगर एक ये ठीक है। तो अब हजूर ने 49 को छोड़ दिया है, एक को सही माना है और कहा है कि इसको मानो, अब ठीक है? हाँ जी, यही कहा है उन्होंने, जो कहा है वही बात है उनकी। ठीक है, उन्होंने जो फरमाया है मोहम्मद अहमद साहब, जो उन्होंने फरमाया है वही बात है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अली अहमद भाई हो गया मसला हल, बाकी सारी हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक ले लेते हैं, ये वाली हुजूर की बात। जी बिल्कुल, ये ले लें। बिजी हो गया मुझे लगता है। हाँ, बिजी हो गया। ये है कि मैंने इनसे कहा था कि मिर्जा साहब ने जो बात कही है उससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं है। उन्होंने एक हदीस का जिक्र यहाँ किया है, बाकी सारी हदीसों को मखदूश करार दिया है। हाँ जी, ऐसे ही है भाई, इस बात से मुत्तफिक हैं? हाँ जी, ये मुत्तफिक हैं, ये तो मुत्तफिक तो हुआ हूँ आपके सामने। इसके अलावा कोई और हदीस नहीं, जो बाकी हैं उनके बारे में कोई और हदीस ठीक नहीं है। हाँ जी, अपने अपने कबीले की तरफ उनको शौक थे, जो अब्बासी कबीले थे उनको शौक थी अपनी तरफ के उनमें से महदी हो या खुद को महदी कहलवाएं, इस तरह के शौक उनमें थे, वो एक दूसरे के मुखालिफ जो हैं मिलती हैं। जी, ये बात साबित हो गई कि सारी हदीसें झूठी हैं सिवाय इस हदीस के जो मिर्जा साहब ने बात कही। जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर तत्बीक का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं, करता अगली है, बात पूछ लेने दें उनको। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये बात समझा देना मुझे, मेरी और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मसला इनसे बड़ा है कि अगर क्या कुरान में तजाद है, लफ्ज तत्बीक ये सबूत है कि कुरान में तजाद मौजूद है,
क्योंकि उसने बताया कि तत्बीक का मतलब होता है कि जो मुख्तलिफ चीजें कुरान में पढ़ो तो उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करनी पड़ती है। तो क्या लफ्ज तत्बीक ये साबित करता है कि कुरान में तजाद मौजूद है? पहले ये साबित कर दें मुझे, क्या ये इनका ईमान है? मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखें, तदबीक की ज़रूरत उस वक़्त पड़ेगी कि जब दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो दोनों हमारे लिए काबिल कबूल हैं और उनके अंदर कोई इख्तलाफ है, तो उनके अंदर एक मिडल स्पेस पे जाने के लिए हम एक रास्ता इख्तियार करें और दोनों को वो जो ना इक्वल पैरेलल वज़न पे ले आए, फिर तो तदबीक होएगी। मगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट हो रही है, ये सही नहीं है, और एक बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कैसे तदबीक ले आएंगे आप, कैसे करेंगे? जैसे भाई आपका वो कैमरा वो करो, सॉरी ज़हीर भाई, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है और एक को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने के बाद एक को अपना रहे हैं, तो आप कैसे तदबीक कर लेंगे? देखें यही चीज तो, बिल्कुल यही चीज तो गैर अहमदी हजरात हमसे क्या करते हैं तकाजा कि हजरत ईसा के मोजज़ात क्लियरली सूरह माइदा 110 में लिखे हुए हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, गारा उठा के परिंदे बना देते थे, फलाना कर देते थे। सर सैयद ये जो हैं डॉक्टर इसरार साहब तो क्लियरली कह के गए, लेक्चर दे के गए। अब जजा भाई अपना कैमरा बैक करो, ताड़ी तस्वीर आ रही है, कैमरे में बैक करना। दूसरी कुरान की आयत कह रही हैं कि वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताएं, ये तजाद है कि नहीं है? ये बज़ाहिर तजाद लगता है, मगर हम दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे नहीं यार, नहीं, एक चीज होती है, एक चीज होती है। देखिए पहले मेरी बात सुने, आपने क्वेश्चन किया है, मैं उस पर आंसर कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट होगा तो मैं खुद बताऊंगा। ज़हीर भाई अभी आपके पास माइक है। देखें, आपने जो एग्जांपल दी है कुरान मजीद की दो आयतों की, हम उसमें से किसी एक को भी रिजेक्ट नहीं करते, हम उन दोनों को मानते हैं, मान के चलते हुए फिर हम उनमें ऐसी तदबीक पैदा करते हैं कि उनके अंदर तजाद पैदा ना हो जाए। वहाँ हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मगर मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल ये है सर, एक चीज़ रिजेक्ट हो चुकी है वो सही नहीं है और एक चीज़ सही है, उसके अंदर तदबीक पैदा करना एक बेवकूफ़ी वाली बात है, अक्लमंदी की बात नहीं है। मेरे भाई जो असल बात है ना, आप उसको छोड़ गए। आपके सर पर किसी ने बंदूक नहीं रखी हुई, आपने ये काम क्यों किया है? ये जो आप अभी कह के गए हैं ना, उसमें जो असल लफ्ज है ना कानून कुदरत, वो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने जब हजरत ईसा के मौजज़ात का इनकार किया है ना, उसका ताल्लुक कानून कुदरत से है, आपने इसलिए इनकार किया है। आपने इस वजह से इनकार नहीं किया, मेरी बात सुनिए, आपने इस वजह से इनकार नहीं किया कि दूसरी जगह ये मौजूद है कि कुरान में ये लिखा है कि ये कुछ भी पैदा नहीं करते। अगर कुरान में ना भी लिखा होता तो हमें पता था ये कुछ भी पैदा नहीं करते, हमें फिर भी पता था। देखें जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि जाओ आसमान पर जाओ, जाकर किताब लेकर आ जाओ, आपका क्या ख्याल है उन्होंने ये सवाल क्यों किया? आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है, अगर उनको एक मिनट तफसील तो सुन लो। अगर उनको 1% भी यकीन होता ना कि ये ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा सवाल ही ना करते। जी जवाब दें। मैं जो मेरे इल्म में है कि इंसान उस वक़्त के दौर का, या कुछ लोग आज भी, वो जब ज़माने गुजर जाते हैं वो समझते हैं कि एक अल्लाह की तरफ से चीज़ आई है तो वो सुपर ह्यूमन टाइप कोई चीज़ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिछलों के बारे में ऐसा ही सुना हुआ था, तो वो उसी तरह के तमाशे करना शुरू हो गए। मगर ये नहीं देखते कि पिछलों को भी जब ऐसी हरकत करने पे मना किया गया था, इनको भी फ़ौरन ही मना कर दिया अल्लाह ने कि भाई ये नहीं होता, जाओ काम करो, जाके मानना तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, ऐसे ही होता है, मुझे कुछ नहीं होते। ये उन्होंने कोई भी जवाब दिया अल्लाह ने, मुझसे का तो लफ्ज़ भी नहीं आया कुरान में। पता अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हजरत ईसा के मौजज़ात आप पढ़ते हैं तो आप क्या उस पर ईमान लेकर आते हैं? और अगर लेकर आते हैं तो किस तरह लेकर आते हैं, जरा समझा दें। किधर है मुझसे, कहाँ है? नहीं उसको छोड़ो यार, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि इस आयत पे आप किस तरह ईमान लेकर आते हैं? आप भाईजान क्या इस आयत में मौजूद है ही नहीं? मैं ईमान तो तब लाऊंगा बच्चियां वाली गल कर, उसकी मेरी बात सुनो।
यार कुरान अल्लाह की किताब है, तो पेश तुम ईमान करें, लेकर आते हो आयत ना। तो पेश करें। सूरह मायदा आयत नंबर 10 में हजरत ईसा गारा उठा के परिंदे बना देते थे। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह अगर ईमान आयत लेकर आए? नंबर सूरह मायदा आयत नंबर 10 में है ना, आप कह रहे हैं, मैं अभी 110 चेक करता हूँ, 110 में अभी में चेक करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। कोई भी मोर्चा नहीं नहीं, लिखा मेरा भाई। मेरा ये सवाल नहीं है। आपने कहा कि इसमें दो मुख्तलिफ बातें हैं या नहीं है, मुझे समझाएं किस तरह हैं और किस तरह नहीं है। ज़हीर भाई पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा। देखें कुरान मजीद नहीं, आप ऐसा करें कि जो मैंने बात बताई है, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा है? मैं बात कर लूं। यही तो मैंने पूछा है कि जो मैंने बताया है वो मैंने क्या बताया। जज़ाकल्लाह। हमारी बात जो एक क्वेश्चन हुआ अली अहमद भाई ने रखा, वो एक डिफरेंट टॉपिक था। उसके आंसर में आप तत्बीक को समझाने के लिए कुछ मिसालें लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे खाकसार ने ये अर्ज़ कर बैठा कि देखें तत्बीक तो उन चीज़ों में होगी, दो चीज़ों पे जो मुसल्लम हों, जो बिल्कुल दोनों पे मान रहे हों, बज़ाहिर उनमें कोई डिफरेंस लग रहा है तो उनको सेम पेज पे लाने के लिए एक बेहतरीन इस्तिलाह लेने के लिए तदबीक करनी पड़ेगी। मगर अगर एक चीज़ है ही रिजेक्टेड, वो काबिल कबूल ही नहीं है, और एक नहीं रिजेक्टेड है क्यों? तो है वो इसलिए क्यों है? यही तो मैंने कहा। ये क्या मैंने आपको ये जवाब नहीं दिया कि कानून कुदरत में रिजेक्टेड, कानून कुदरत में रिजेक्टेड है? मैं कुछ भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, खास तौर पे ये दीनी बातें जो होती हैं। कुछ दीन के बड़े रहबर आते हैं जी, अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, वो आके कहता है कि भाई मैंने ये 10 चीज़ें पढ़ी हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये बेकार है, इसमें ये जो काबिल एतबार ही नहीं है, ये मखदूश है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये वो कह रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं खुदा जाने, वो कहते हैं मुझे अल्लाह बताता है जो भी है। बहरहाल उन्होंने वो सारा को रिजेक्ट कर दिया और एक चीज़ पकड़ी और कहा कि मैं ये मानता हूँ, ठीक है। अब इसमें तदबीक नहीं हो सकती, बिल्कुल तदबीक नहीं निकल सकती इसमें। अगर निकलेगी वो बताएं कैसे निकलेगी। कर दी अल्लाह महदी ईसा कह दिया जब, पर ये तदबीक नहीं है जज्जा भाई। ये एक हदीस को मान लिया, बाकी सबको छोड़ दिया है, पीछे कर दिया है। इसमें तदबीक कैसे बनाएंगे? बाकी तो देखें अवैस भाई, इस तरह मसला है कि बाकी जो सारी एक दूसरे की तरफ खींची जाती हैं, कुछ कबीलों की तरफ खींची जाती हैं, लेकिन ये जो हदीस इब्ने माजा में है, ये किसी की तरफ नहीं होती, किसी की तरफैन नहीं है। ये अल्लाह महदी ईसा तो वही वो नहीं सही है, ये सही है ना? वो नहीं सही, ये सही है, ऐसे ही तो है। ये ठीक है, ये दुरुस्त इसमें तदबीक करो, उसको भी ठीक करो। तदबीक करके कैसे करोगे? हाँ जी, मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ, तो उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा सब 80 दोस्त। दफा भी पढ़ लो, ये 1000 दफा पढ़ चुके हैं हम, गैर अहमदियों के आगे भी। नहीं भाई, ये और है, और भी है जो पढ़ता हूँ। ये जो सामने है, ये आप पढ़ चुके हैं? क्या है ये, कौन सा वाला है? यह है कि रूहानी खजाइन जिल्द 4 है, ओके, सफ़ा नंबर 392 है, आसमानी निशान है। हाँ ठीक है, ये पढ़े, ये डिफरेंट है। ओके पढ़े ना। हाँ, ये आप पढ़ दें तो फिर बहुत मैं बड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, नॉलेज। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक। पहले तो मैंने टैबलेट पे खोला हुआ था, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सही है, ओके, मैं पढ़ देता हूँ। मैं शुरू से पढ़ता हूँ। एक और नुक्ता यह है कि जो कलाम इलाही पर गौर करने से मालूम होता है, वो ये है कि जब इंसान खुदा ताला के जज्बात से हदायत पाकर इस लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, हदायत पाकर दिन ब दिन हक और हकानियत की तरफ तरक्की करता है, नफ्स और नफसानी अमूर को छोड़ जाता है, तो आखिर इंतहाई नुक्ता इसके तस्फिया नफ्स का ये होता है कि वो बकुल्ली जुल्मत नफ्स और जज्बात नफसानिया से बाहर आकर वो और जिस्म को जो तख्तगाह नफ्स है, अदखना जिस्मानिया से धोकर एक मुसफ़ा कतरा की तरह हो जाता है। इस वक्त वो खुदा ताला की नज़र में फ़कत एक रूह मुजर्रद होता है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या रह जाता है? अल्लाह ताला के नज़दीक वो क्या रह, एक रूह मुजर्रद हो जाता है।
जो गुजारश नफ्स के बाकी गुदाजिश ये लफ्ज़ है कि जो नफ्स